So in today's class, we will be further doing another example to further clarify the concept of operator overloading. As I already said in yesterday's class, नाम से ही आपको समझ आ रहा है कि ऑपरेटर ओवरलोड ओवरलोड मतलब जो नॉर्मल काम होता है किसी बंदे का उसको और ज्यादा काम देना उसको ओवरलोड करना. तो एडिशन जैसे कि हमने एडिशन वाली एग्जांपल से समझ लिया था कल. द एडिशन ऑपरेटर adds two numbers or concatenates two strings, but we want to add two objects also. That's we are giving further job to a particular operator. We are overloading the operator. So this is the basic concept of this is the basic definition of overloading. And usually in the programming sense we just define operator overloading as when a single operator has got multiple forms, where in each form it can execute various it can perform different tasks. तो एक ही चीज एक ही ऑपरेटर मल्टीपल फॉर्म्स एंड इन एवरी फॉर्म इट इज एबल टू परफॉर्म मल्टीपल टास्क्स. इसी the same is based similarly we define function overloading where a single function has got multiple forms and all the forms have got the same name but each form performs different tasks. तो हम बोलते हैं एक फंक्शन मल्टीपल फॉर्म्स, एक फंक्शन बहुत काम कर बहुत अलग अलग किस्म के काम कर रही है. So polymorphism. Similarly, operator overloading, where one operator is able to perform multiple operations in different forms. So it is again polymorphism and it is known as operator overloading. So कल हमने in the previous session we did the example of binary how to overload binary operators. Today we will be discussing a simple example how to overload assignment operator. जबकि मैंने कल भी और इससे पहले वाले सेशन में भी आपको बताया था there are certain operators that are by default overloaded by the C++ compiler. One among them is assignment operator. जैसा हमने कल किया था when we added two we wrote obj या ob1 is equal to, जैसे कि यहीं पे मेरे पास वो एग्जांपल है, हमने यहाँ पे लिखा था ob1 is equal to ob1 plus ob2. we overloaded this plus operator. तो वहां से जो ऑब्जेक्ट आ गया फिर हमने असाइनमेंट ऑपरेटर को ओवरलोड नहीं किया, उसके लिए अलग फंक्शन अलग कोड लिखने की जरूरत नहीं थी. व्हाई? बिकॉज असाइनमेंट ऑपरेटर इज बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली ओवरलोडेड बाय द C++ कंपाइलर. लेकिन आज की एग्जांपल में हम इसी असाइनमेंट ऑपरेटर को ओवरलोड करेंगे. नाउ योर क्वेश्चन कैन बी, सर अगर ये पहले से ओवरलोड हो रहा है तो हमें क्यों इसको ओवरलोड करना है? व्हाई डू वी नीड टू राइट द कोड? वी नीड टू राइट द कोड बिकॉज कल जब हमने इसको किया हमने लिखा ऑब्जेक्ट, जैसे कि यहाँ इस प्रीवियस एग्जांपल में फिर से जा रहा हूँ. मैंने जब यहाँ से when two objects will get added, तो नया ऑब्जेक्ट बनेगा that will be returned here. Now that object will automatically be assigned to ob1. अब कैसे असाइन किया जाएगा भाई? उसका जो लॉन्गिट्यूड होगा वो इसका लॉन्गिट्यूड बन जाएगा, जो उसका लैटिट्यूड होगा वो इसका लैटिट्यूड बन जाएगा. सो देयर विल बी वन टू वन मैपिंग बिटवीन दिस ob1 member variables and the member variables of the object that will be returned after performing this addition. लेकिन what if मैं सिर्फ चाहता हूं भाई वहां से जो ऑब्जेक्ट आ जाए उसका सिर्फ जो लॉन्गिट्यूड होगा वो इसके लॉन्गिट्यूड में जाना चाहिए, लैटिट्यूड नहीं जाना चाहिए. तब जो इसका असाइनमेंट ऑपरेटर ओवरलोडिंग का जो बेसिक कोड है वो तो चेंज करना पड़ेगा. So that's for that purpose we need to implement overloading for this assignment operator. तो आज की हम छोटी सी एक एग्जांपल में, I know you have been exhausted from taking classes, that's why I have taken a simple and small example. इसको खत्म करेंगे and that's all for today. तो हमने क्या किया, सब फिर से मैंने कल की तरह ही एक I have created a class whose name is LOC. It has got two data members, both are private, one is longitude, another is latitude. And then this is default constructor, this is parameterized constructor. ये default क्यों है? कल भी मैंने यहाँ पहले भी बहुत बार बताया है, because it is not taking any parameter, it is taking a parameter, so it is parameterized constructor. So similarly this is a simple function which displays longitude and latitude for different objects. Then there is another member function which returns the object of the type LOC class. It is an operator function. और कौन सा ऑपरेटर है ये? असाइनमेंट ऑपरेटर, दैट इज इक्वल टू ऑपरेटर. इट इज टेकिंग अब देखिए असाइनमेंट ऑपरेटर जो है इट इज अगेन ए बाइनरी ऑपरेटर है कि नहीं? जैसे कि यहाँ पे ये असाइनमेंट ऑपरेटर मैं यूज कर रहा हूँ इक्वल्स टू. अब ये बाइनरी ऑपरेटर है क्यों? बिकॉज इट हैज गॉट टू ऑपरेंड्स. वन दिस इज फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड इट इज वन ऑपरेंड एंड फ्रॉम राइट हैंड साइड इट इज अनदर ऑपरेंड. और ये काम कैसे करता है? इट टेक्स द वैल्यू स्टोर्ड इन दिस वेरिएबल एंड प्लेसेस इन दिस वेरिएबल. ऐसे ही करता है असाइनमेंट ऑपरेटर काम. राइट साइड वाले को का वैल्यू उठा के लेफ्ट साइड वाले वेरिएबल में डाल देता है. तो ये काम करता है. नाउ आई नीड टू चेंज इट्स मीनिंग बिकॉज आई नीड टू असाइन टू ऑब्जेक्ट्स टू ईच अदर or assign the value of one object into another object. So for that I need to define the member function in this LOC class whose name is again equals to. Now this is an operator function. I need to write the keyword operator. अब operator जो होता है वो दो ऑपरेंड लेता है. एक, since this is the member function of LOC, so one object will be automatically passed, that is implicitly passed to this operator function when we will call it.
एंड वो कौन सा वाला होगा, जैसे कि अगर मैं इससे समझा दूं आपको, अगर मैं या नीचे ही जब when we will be discussing the main function, तो एक there are since there are two operands in assignment operator, so one operand will be implicitly passed and another for another operand we are passing that explicitly and we need to catch it. So for catching or storing we are creating this variable here which is again the object of the type LOC. तो उसके बाद इसको मैंने क्लास के बाहर डिफाइन किया है, जबकि आप इसके कोड को यहीं पे ही लिख सकते हो, दैट्स वन एंड द सेम थिंग, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. नाउ व्हाट आई एम डूइंग, आई एम प्लेसिंग, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट आ गया जिसका एड्रेस किसमें होगा, OP2 में. नाउ OP2 ऑफ longitude will be equal to latitude, longitude, and OP2 latitude will be equal to latitude. अब ये जो longitude है और latitude है ये किसका होगा, these will be the data members of that object which is implicitly passed to this operator function. जबकि ये जो है ये हम explicitly बता रहे हैं भाई ये तो OP2 का है, तो उसका longitude इसमें longitude में जाएगा और उस जो हम explicitly object pass कर रहे हैं उसका latitude will be placed in this latitude. और ये कौन सा लैटिट्यूड होगा, ये होगा उस ऑब्जेक्ट का लैटिट्यूड वेरिएबल, मेंबर वेरिएबल जो इम्प्लिसिटली पास किया जा रहा है. फाइनली आई एम रिटर्निंग. नाउ व्हाट आई हैव टू रिटर्न, या तो यहाँ रिटर्न करने के लिए आपके पास दो तरीके थे, या तो आप एक नया वेरिएबल, नया ऑब्जेक्ट बना लीजिए, उसके बाद फॉर एग्जांपल LOC temp, फिर temp डॉट longitude इज इक्वल टू OP2 डॉट longitude, temp डॉट latitude इज इक्वल टू OP2 डॉट latitude, जैसे हमने कल किया, देन रिटर्न temp. दैट इज वन प्रोसीजर. द अनदर प्रोसीजर इज जो हमारे पास इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट आया है हम उसी को चेंज करेंगे, बिकॉज दैट इज द लॉजिकल सेंस ऑफ इम्प्लीमेंटिंग द असाइनमेंट ऑपरेटर. हम बोलेंगे भाई जो ऑब्जेक्ट आपने इम्प्लिसिटली पास किया है उसी का लॉन्गिट्यूड में डाल दो इसका लॉन्गिट्यूड, उसी के लैटिट्यूड में डाल दो दूसरे ऑब्जेक्ट का लैटिट्यूड. देन वी नीड टू रिटर्न दिस ऑब्जेक्ट जिसके ये डेटा मेंबर्स है लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड. तो जो ऑब्जेक्ट इम्प्लिसिटली पास किया जाता है किसी भी मेंबर फंक्शन को, अब ये इक्वल टू जो है वो तो मेंबर फंक्शन है बिकॉज इट इज डिक्लेयर्ड इनसाइड द क्लास. यहाँ से भी आपको समझ आ सकता है, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर से पहले मैंने LOC क्लास का नाम लिया है, सो दिस इज अ मेंबर फंक्शन, मेंबर ऑपरेटर फंक्शन ऑफ LOC क्लास. तो इस क्लास को जो ऑब्जेक्ट इम्प्लिसिटली पास किया जाता है दैट ऑब्जेक्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस ऑपरेटर. सो दिस इज एन ऑपरेटर, PHIS कीवर्ड है ये, दिस इज एन ऑपरेटर व्हिच ऑलवेज पॉइंट्स टू दैट ऑब्जेक्ट व्हिच इज करंटली बीइंग एग्जीक्यूटेड, या जिसको जो अभी किसी फंक्शन को कॉल कर रहा है. अभी कौन सा जो ऑब्जेक्ट इस ऑपरेटर को कॉल कर रहा होगा उसी के ये लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड होंगे और दिस ऑपरेटर जो है वो उसी को पास कर रहा है, एंड आई नीड टू रिटर्न दैट ऑब्जेक्ट. नाउ दिस ये जो दिस होता है इट एक्चुअली पॉइंट्स का मतलब दिस इज अ पॉइंटर. अब पॉइंटर का वैल्यू पास करने के लिए व्हाट डू वी राइट स्टार दिस. सो दैट्स व्हाई मैंने यहाँ कमेंट में भी लिखा है आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, रिटर्निंग ऑब्जेक्ट दैट जनरेटेड कॉल. तो वो ऑब्जेक्ट जिसने इस ऑपरेटर फंक्शन को कॉल किया ये उसी ऑब्जेक्ट को रिटर्न कर रहा है. अगर अभी तक कोई कंफ्यूजन है तो जब हम मेन में आ जाएंगे और ज्यादा क्लियर हो जाएगा. सो इनिशियली दिस विल गेट एग्जीक्यूटेड. तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट 1 विल गेट क्रिएटेड, लॉन्गिट्यूड में 10, लैटिट्यूड में 20 आ जाएगा. सिमिलरली ऑब्जेक्ट 2 क्रिएट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, या चलो इसको मैं ऐसे बना लेता हूँ फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. when this object 1 will get executed using the constructor, एक मेमोरी एलोकेट की जाएगी. अब यहाँ पे पहले क्या था, लॉन्गिट्यूड, दिस इज लैटिट्यूड, इसके लॉन्गिट्यूड में 10 है, इसके लॉन्ग लैटिट्यूड में 20 है, एंड दिस इज OB1, मैं शॉर्ट में 1 लिख लेता हूँ. सिमिलरली व्हेन दिस ऑब्जेक्ट विल गेट क्रिएटेड अगेन द मेमोरी विल बी एलोकेटेड जो इसी टाइप की होगी लेकिन उसका नाम होगा OB2 और उसका यहाँ लॉन्गिट्यूड में आएगा 5 यूजिंग द कंस्ट्रक्टर, एंड लैटिट्यूड में आएगा 30. आई एम क्रिएटिंग अनदर वेरिएबल ऑब्जेक्ट दैट इज OB3. तो उसका ऑब्जेक्ट जब क्रिएट किया जाएगा, हियर इट इज 90. हैंडराइटिंग जबरदस्त है मेरी. So this is object 3. Clear, understood? So when this line will get executed, 3 objects will get created, memory will be allocated. So this is your object 1, object 2, and object 3. Then I am calling OB1.show. अब ये देख लेते हैं भाई show function जो है वो क्या है. This is your show function. Now it will display, किसको display करेगा, longitude और latitude. किसके longitude और latitude को, 1 के, 2 के या 3 के, that will depend on which object is calling. अब यहाँ पे कॉल कौन कर रहा है, OB1 ये है, तो इसका longitude that is it will display 10. तो आउटपुट क्या होगा, आउटपुट will be 10 and 20.
Clear? Then I am displaying object 2. What will be the output? 5, 30. Clear? No confusion. Then I am assigning भाई OB3 जो है मतलब ये इसका वैल्यू OB1 में आना चाहिए. अब मेरा कोड क्या है? When this will get executed, it will check कि क्या ये ऑपरेटर जो है ओवरलोड तो नहीं किया है यूजर ने. हाँ भाई किया है. There is a function. So when this line will get executed, control will return to this point. जब यहाँ पे आ जाएगा तो ये क्या करेगा? Now here it has to pass two objects. One is object 3 and one is object 1. अब ये जो पहले होता है ऑपरेटर से पहले बाइनरी ऑपरेटर जो भी होता है उसमें जो पहले ऑपरेंड होता है दैट इज इम्प्लिसिटली पास. तो इस फंक्शन के पास इम्प्लिसिटली OB1 आ जाएगा. दिस फंक्शन कैन डायरेक्टली एक्सेस OB1. जबकि ये जो OP2 है इसके अंदर आपका, इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ, इसके अंदर आपके पास आ जाएगा OB3. अब OB3 नहीं मैं लिखता, मैं शॉर्ट में 3 लिख रहा हूँ. क्लियर? इसी तरह मैंने यहाँ OB1 के बदले शॉर्ट में लिख दिया 1. तो 1 इम्प्लिसिटली पास किया जाएगा. तो इसका मतलब ये जो लॉन्गिट्यूड है इट इज एक्चुअली OB1 डॉट longitude and similarly OB1 dot latitude. लेकिन वो लिखने की जरूरत नहीं है. Why? Because that OB1 is implicitly passed to this function. लेकिन दूसरा ऑपरेटर जो होता है that is OB3 that is explicitly passed और वो किस में कॉपी किया जाएगा? OP2 में. So अब अगर मैं लिख रहा हूँ OP2 dot longitude तो ये किसको पॉइंट करेगा? भाई OB3 के longitude को, that is 90. इसको उठा के किस में डाल देगा? OB1 dot longitude इसमें. So it will be overwritten by 90. Similarly, इसी OP2 is pointing to object 3. Object 3 का जो क्या है वो latitude, ये उठ के किस में आ जाएगा? यहाँ पे. So it will be again overwritten by 90. Clear? Similarly, in this line, next line, what I am doing, I am assigning OB3 to OB2. फिर से इसी फंक्शन को कॉल किया जाएगा. बट इस टाइम पे give me 1 second. इस टाइम पे ये जो आपका now at this time when this line is getting executed OB2 is equal to OB3 implicitly pass कौन सा किया जाएगा? OB2. तो यहाँ जो है this is actually OB2 dot longitude and OB2 dot latitude और explicitly pass किसको किया जाएगा? OB3 को. क्लियर? तो ये जो OP2 है उसके अंदर क्या होगा? OB3. सो इसका मतलब है OB3 dot longitude that is this वो उठ के किसमें आ जाएगा? OB2 dot latitude. तो इसमें so it will be overwritten to 90. Similarly ये भी overwritten to 90. तो हो गया ये भी. Then you are simply displaying OB1 and OB2. So आपका आउटपुट क्या आएगा? भाई सबके सब 90 90 बन गए. तो your output will now be, पहले तो होगा 10 20 5 30. Now your output will be 90 90 90 90. Is it clear? Any question? तो इसको हम आपकी तसल्ली के लिए रन कर देते हैं. This I am compiling the code. इसको रन कर देते. अच्छा ये जो मैं कमांड से रन कर रहा हूँ, IT वाले बच्चे जो है इसको डरने की जरूरत नहीं है. आई एम यूजिंग द लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम. तो मेरे इस ऑपरेटिंग सिस्टम में बाय डिफॉल्ट पहले से ही C++ कंपाइलर होता है. तो मुझे अलग से वो क्या बोलते हैं ये ID इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है. लेकिन अगर आप विंडोज यूज कर रहे हैं तो वहाँ पे आप अपना कोई ID इंस्टॉल कर सकते हैं, वेदर दैट इज टर्बो C, डेव C++ या देयर आर सो मेनी, या ऑनलाइन चलाना चाहते हैं वैसे भी चलेगा. वहाँ पे सिर्फ बटन पे क्लिक करना है, कंपाइल हो जाएगा, रन हो जाएगा, जैसे कि आपने इससे पहले भी प्रीवियस सेमेस्टर में किए हैं C++ प्रोग्राम्स. सो व्हाट इज योर आउटपुट? जो हमने अभी एक्सप्लेनेशन में देखा भाई, पहले 10 20 उसके बाद 5 30, बट देन यू आर चेंजिंग अब 90 90 90 90. क्लियर? तो जैसा मैंने एक्सप्लेन किया वैसा ही यहाँ पे हो रहा है. देयर इज नो चेंज. लेकिन अभी तक जो ये प्रोग्राम हमने देखा, इट इज सिमिलर टू दैट ऑफ द प्रीवियस वन जो हमने कल एग्जांपल की, और वहां पे हमें इसको ओवरलोड करने की जरूरत नहीं थी. नाउ योर क्वेश्चन विल बी, सर इसको क्यों हमने ओवरलोड किया? माय आंसर वाज एंड विल बी कि फॉर एग्जांपल आप सिर्फ चाहते हो भाई जब मैं OB1 इज इक्वल टू OB3 लिख रहा हूं तब सिर्फ ये होना चाहिए. क्या होना चाहिए? सिर्फ लॉन्गिट्यूड कॉपी होना चाहिए, लैटिट्यूड कॉपी नहीं होना चाहिए. लैटिट्यूड शुड रिमेन सेम. तो आपको कोड तो लिखना पड़ेगा, तब तो जो डिफॉल्ट वैल्यू होगा वो तो नहीं रहेगा. अब आप देखो, अब अगर मैं इसको फिर से कंपाइल कर रहा हूँ, फिर से इसको रन कर रहा हूँ, व्हाट इज योर आंसर? अब आप देखिए ये जो OB1 है, पहले OB1 का वैल्यू क्या था?
1020 और OB2 का वैल्यू क्या था 530. बट नाउ व्हाट यू आर डूइंग व्हेन यू आर डिस्प्लेइंग, आपने क्या किया, OB3 का वैल्यू OB1 में डाल दिया, OB3 का वैल्यू OB2 में ही डाल दिया, लेकिन योर कोड इज यू आर ओनली कॉपीइंग द लॉन्गिट्यूड वैल्यू, नॉट द लैटिट्यूड वैल्यू. तो क्या चेंज होना चाहिए, लॉन्गिट्यूड होना चाहिए. सो यू कैन सी व्हाट इज द आउटपुट. आप देख सकते हैं 20 सेम ही रहा, बट 10 गॉट चेंज टू 90. सिमिलरली when you will be displaying OB3, you are only this 5 से ये overwrite हो गया 90, लेकिन जो इसका क्या है वो दूसरा latitude that is same. तो that means अगर आपको सारे के सारे values copy करने हैं, OB1 is equal to OB3, और आपको दोनों करने हैं, इसके जितने भी डेटा मेंबर्स है सबको कॉपी करना है, तब ये ओवरलोड करने की जरूरत नहीं है. यू डू नॉट नीड टू राइट दिस कोड बिकॉज इट इज ऑलरेडी बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय C++. बट इफ यू वांट टू चेंज समथिंग, you want to only copy only some of the data members of those objects. For example, you want to copy only the first data member into this another object. Then you need to change the code, you need to write the code. So for that purpose, it cannot be automatically or by default overloaded. You have to explicitly write the code. तो इसीलिए मैंने ये code दिखाया assignment operator का, ताकि और ज़्यादा आपको clear हो जाए. This is again the binary operator. Assignment is again the binary operator, so you people can again relate it with the previous example where we discussed how to overload addition, arithmetic operators, addition, subtraction, multiplication, division and modulo operator. तो इसी तरह हमने assignment operator को भी कर लिया यहाँ पे overload. Now tell me, is there any question? ये समझ आ गया ये example कैसे हम assignment operator को overload कर सकते हैं. ये by default overloaded होता है, लेकिन फिर भी हमें क्यों करना पड़ता है, that depends upon the our problem. Okay, one question is there, operator वाले function में argument हमेशा एक ही लेंगे? नहीं, अरे it depends upon your operator. भाई अगर आपका binary operator है, उसमें एक operator क्या होगा implicit, दूसरा operator क्या होगा explicit.